Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will start a new chapter, that is chapter 14, Democracy in Independent India and the Working of Political Institutions. So let's start this chapter. We learned in the previous chapter about the different institutions to govern and administer the country that has been described in the Indian Constitution. What functions do these institutions perform and what is their relationship to each other? In this chapter, we shall try and understand how democratic politics developed in India at the ground level after independence. How was the economic and foreign policy of the country formulated and how was it executed? What were the aspirations and needs of people living in different regions of India? What steps did the government take to fulfill these aspirations and needs? Let us try and analyze these initiatives of the government. देखिए हम लोगों ने क्या है लास्ट चैप्टर में जो आपका इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा कि किस तरीके से हम इंडिया में इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्टर जो है वो रन करती है हमारी कंट्री में और मतलब किस तरीके से रन करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किस तरीके से रन करती है, ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, ठीक है, जो पॉलिटिक्स थी इंडिया में वो किस तरीके से डेवलप हुई इंडिपेंडेंस के बाद से, किस तरीके से इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी हमारी कंट्री में फॉर्मुलेट की गई, एक्सिक्यूट की गई, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sought to achieve several objectives simultaneously. They included making democracy effective and vibrant, bringing political unity to the country, and creating institutions to work for much needed economic and social change. The challenge before the newly independent country was to develop these institutions and systems and ensure they worked efficiently and rapidly. The people of India had to prove to the world that they could maintain the unity and integrity of the country after it gained independence, while also working within a democratic framework to bring about economic and social change. We shall try to understand the democratic system that was introduced and developed in India after independence from the following events. देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जैसे कि उनको मतलब हमारी कंट्री को क्या करना है, डेमोक्रेटिक, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी निभाने के लिए, अब अच्छे तरीके से हमारी कंट्री को पूरा यूनिटी बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने की, पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखने की ज़रूरत थी और साथ में ही इकोनॉमिक और सोशल चेंज भी की भी ज़रूरत थी। तो चैलेंज हमारे सामने ये था, हमारी कंट्री के सामने ये था कि इस इंस्टीट्यूशंस और ये जो सिस्टम है उसको डेवलप करना ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क करे और काफ़ी रैपिडली वर्क करे, काफ़ी फास्ट वर्क करे। पीपल ऑफ इंडिया के लोगों को क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था पूरे वर्ल्ड को कि हम अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिपेंडेंस के बाद में भी बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्रेमवर्क दे दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में उनको एक क्या दे दिया गया, फ्रेमवर्क दे दिया गया ताकि वो इकोनॉमिक और सोशल चेंज जो है वो ला सके। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1952. An important challenge before the country was to conduct the first general election according to the new constitution in order to ensure the success and stability of Indian democracy. Although our constitution was adopted in 1950, the first general election was conducted in 1952. It required intense preparations. Every adult Indian men and women had been conferred the right to vote for the first time. The first task was to prepare the electoral rolls listing the names of all eligible voters in the country. This was a monumental task given the vastness of the country and the difficulty in reaching far-flung regions. The voters had to be educated about the electoral process and persuaded to visit the polling booths to cast their vote. Also, polling booths had to be set up across the country and staffed by polling officers.
Around 85% of the population was illiterate, so how could they read and recognize the names of the candidates they wanted to vote for? The Election Commission came up with an innovative solution. Each candidate was allotted an election symbol that was prominently displayed on the ballot box. Each candidate had a separate ballot box, so the voters had to drop their voters slip in the box of their preferred candidate. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद में सबसे पहला जो हमारी कंट्री के सामने में चैलेंज था वो ये था कि पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाना। हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1950 में बनकर रेडी हो चुका था, अडॉप्ट हो चुका था। लेकिन हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ वो 1952 को हुआ। क्यों 1952 को हुआ? क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ी। ठीक है, सभी मेन और सभी वीमेन जो थी वो यहाँ पर, जो भी अडल्ट मेन और वीमेन थे वो यहाँ पर वोट करने वाले थे। अब यहाँ पर जो इलेक्टरल कमीशन है उनके सामने में दिक्कत ये आई कि इंडिया जो था वो उस वक्त पे बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर इलिटरेट थे। जो जो लोग वहाँ रह रहे थे, जितने भी अडल्ट मैन या वीमेन थे, वो उनमें से कई सारे जो थे वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। तो वो बिना बिना पढ़े क्या करेंगे? वो वोट कैसे देंगे? जब उनको पढ़ना ही नहीं आता तो वोट कैसे देंगे वो? तो यहाँ पर जो इलेक्टरल कमीशन थी उन्होंने काफ़ी एक इनोवेटिव आइडिया ढूंढा और सभी कैंडिडेट को एक सिंबल दे दिया जो कि बैलेट बॉक्स में आपको दिखाई देता। अब जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट करना है आप उस पर क्या कर सकते थे? सील लगा सकते थे। ठीक है, सील लगाकर आपको उस जो स्लिप है, वोटर स्लिप जो है उसको बंद कर उस बॉक्स में डाल देना था। तो इस तरीके से आपका जो जनरल इलेक्शन था वो सारी चीज़ें, मतलब सभी को उनका सिंबल देने के लिए और सभी ऐसा देखने के लिए कि ताकि मतलब सभी जो वोटर्स हैं वो वोट दे पाए। हर जगह पर वहाँ पर वोटिंग बूथ बनाए गए। हर गांव एरिया में भी आपको, मतलब एकदम पिछड़े से पिछड़े जगह में भी आपको क्या करना पड़ा था? यहाँ पर वोटिंग जो है वो बनानी पड़ी थी, जो कि आज भी जो है वो होती है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। The system of universal adult franchisee was being used for the first time in the country to give all citizens the opportunity to vote. The government set up polling booths in far-flung rural areas to enable people to cast their vote. The elections of the legislative assemblies of all the states were held simultaneously with the elections of the Lok Sabha. A total of 17 crore voters were registered for the election, 85% of them illiterate. Around 2,24,000 polling booths were set up, with one polling booth was for around every 1,000 voters. 10 lakh officials were deployed to oversee the polling process. देखिए, जो पहले जनरल इलेक्शंस थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, वो बता रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था वो पहली बार हमारी कंट्री में यूज़ होने जा रहा था और सभी सिटीजन्स जो थे वो वोट देने वाले थे। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने पोलिंग बूथ बहुत रूरल एरियाज में भी क्या किए थे? रूरल एरियाज में भी लगाए थे ताकि सभी लोग जो है वो वोट दे सकें। यहाँ पर लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शन था वो साथ में ही कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 17 करोड़ वोटर्स जो थे वो इलेक्शन में रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 85% जो लोग थे वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। करीब 2,24,000 पोलिंग बूथ जो थे वो सेटअप किए गए। हर एक पोलिंग बूथ में करीब 1,000 वोटर्स जो थे वो वोट दे सकते थे, जिसके लिए 10 लाख ऑफिशियल्स, ठीक है, 10 लाख ऑफिसर्स जो थे वो पोलिंग प्रोसेस में के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किए गए, मतलब उनको लगाया गया पोलिंग प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एंड सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। सेपरेट पोलिंग बूथ्स वेयर सेट अप फॉर विमेन इन रीजन वेयर द मेजोरिटी ऑफ विमेन ऑब्जर्व्ड द प्रैक्टिस ऑफ पुराद. Only women officials were deployed in this booth. A woman came to a polling booth in Ajmer in a horse-drawn carriage, covered from head to foot in velvet clothing, with only her finger exposed.
It was a compulsory requirement to put an indelible ink mark on every voter forefinger to show that they had cast their vote. देखिए कुछ जो इंसिडेंट्स हुए थे इलेक्शंस के दौरान वो यहाँ पर बताए गए हैं। विमेंस के लिए एक सेपरेट पोलिंग बूथ रखा गया था जहाँ पर ऐसे विमेंस के लिए सेपरेट पोलिंग बूथ रखा गया था जहाँ पर लोग जो है पुराद की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विमेन ऑफिशियल्स ही डिप्लॉय किए गए इस बूथ पे ताकि सिर्फ और सिर्फ विमेन ही वहाँ पर वोट दे सके। नेक्स्ट जो है एक विमेन पोलिंग बूथ पे, अजमेर की बात है, एक विमेन जो है पोलिंग बूथ पर हॉर्स ड्रॉन कैरेज पे आई। ठीक है, मतलब वहाँ पर कैरेज पे आई, जो जो घोड़ा जिसको चलाता है कैरेज, उस कैरेज पे आई और वो पूरे तरीके से कवर्ड थी वेलवेट क्लोथिंग पे। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक फिंगर जो थी, जो फोर फिंगर होती है, जहाँ पर मतलब जो फोर फिंगर है वही बस एक्सपोज्ड थी। वो भी इसलिए एक्सपोज्ड थी क्योंकि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी वहाँ पर वोट जो भी लोग जो है वो वोट देंगे उनका जो फोर फिंगर है उसमें एक इंक मार्क जो है वो लगेगा ताकि पता चले लोगों की उन्होंने वोट दिया है। Some villages voted as a single unit. According to one report, the people of an Adivasi village in Assam traveled a full day to reach their polling booth. They spent the night dancing and singing around their campfire. At sunrise, they went in procession, single file to the polling booth to cast their vote. अब यहाँ पर यह हुआ था कि कई सारे जो विलेजेस थे वो एक सिंगल यूनिट में ही उन्होंने वोट जो है वो दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जो आदिवासी विलेज के लोग थे असम में, वो पूरे दिन ट्रैवल कर अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। उन्होंने रात भर डांस किया और गाना गाया कैंप फायर में, और जैसे ही सुबह हुई तो वो वहां पर अपनी सिंगल फाइल लेके पोलिंग बूथ में पहुंच गए अपना वोट देने के लिए। The people of another village decided who to vote for a novel manner. They got two wrestlers to represent the candidates in a wrestling match. They decided that all the voters in the village would cast their vote in favor of the candidate represented by the wrestler who won. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे विलेज में लोगों को वोट देना था, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दो रेसलर लिए। ठीक है, दो रेसलर लिए एक मतलब दोनों रेसलर जो है वो एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा था और वहां पर रेसलिंग मैच उन्होंने करवाया। जो भी रेसलर जीतता, वो पूरा जो गांव है वो उसी कैंडिडेट को वोट करने वाला था। तो इस तरीके से ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो उस वक्त पे पोलिंग बूथ पे हुए थे। ऑन द होल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज मोर सक्सेसफुल देन एनीवन एक्सपेक्टेड. Around 40% of the voters of the electoral rolls cast their votes. Around 40% of the women voters also participated. There was negligible poll violence. The Congress party led by Jawaharlal Nehru won by the huge majority. 45% of the voters cast their vote in favor of the party, which won 74% of the seats in the Lok Sabha. But the non-Congress parties also got wide support from the people, including the Communist Party of India, Socialist Party, Jan Sangh, and several regional parties. Independent India thus took its first successful step towards multi-party democracy. The general elections that followed in 1957 and 1962 were also successful, with Indian democracy striking deep roots. देखिए, ये पूरे तरीके से जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो कंडक्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। सभी के सोच के अनुसार सभी जो सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और करीब 40% जो वोटर्स थे इलेक्टोरल रोल्स में उन्होंने अपना वोट दिया और करीब 40% उनमें से विमेन वोटर्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर पोलिंग बूथ थे उसमें कोई भी वायलेंस नहीं देखने को मिला। जो कांग्रेस पार्टी थी जवाहरलाल नेहरू, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मेजोरिटी के साथ में वो जीत गई। 45% जो वोटर्स थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, जिसमें से मतलब इसका मतलब कि ये कि करीब 74% जो सीट थी वो लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी उनको भी
लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, जैसे कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी थी इसमें। इसके बाद में इंडिया का पहला सक्सेसफुल जो इलेक्शन था वो हुआ। सक्सेसफुल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली इंडिपेंडेंट इंडिया की। इसके बाद में जो जनरल इलेक्शंस थे वो 1957 में और फिर 1962 में भी हुए, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए, काफ़ी सक्सेसफुल रहे। इसके बाद में मतलब कि ये पूरा जनरल इलेक्शंस का जो प्रोसेस था उसके बाद में चलता रहा, और फाइनली इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो क्या हो गई, उसने अपना रूट, जो डीप रूट है वो पकड़ लिया, मतलब कि वो जड़ सहित वो अब क्या हो गई, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री जो थी वो डेमोक्रेसी में आ चुकी थी। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल पार्टी। ठीक है, थैंक यू।